welcome to another episode of the Tech Mindset. हमारे last episode में we talked about the misunderstood techie syndrome. So today we will be talking about the value of becoming an understood techie. So हमने last time बात करी थी कि दुनिया कैसे logical नहीं है in their understanding of what you want to offer. Sometimes उनके inhibitions हैं, sometimes उनकी training, उनके सोचने का नज़रिया है. कई बार they are just not ready and they might also not be logical about things. Case in point, history में ले जाओ पीछे, गैलीलियो के ले लो. उसकी observation, उसने इतना contrary view present किया कि people were just afraid or angry to kind of believe what he was saying. आज की तारीख में I would say look at likes of Elon Musk or Satya Nadella. They are breaking perceptions. So what do you think about that, Gautam? I really like how you brought universe is not logical with somebody who's universe Baba. Galileo. Original OG. कि वो भी बेचारा जो है वो लॉजिकल बातें कोशिश कर रहा था बट कोई समझ नहीं पा रहा था. वो भी मिसअंडरस्टूड साइंटिस्ट था basically. But yes, definitely the value is in becoming like these people basically. सबसे बड़ा वैल्यू ये है अगर we become the understood people basically. And I can give you one example basically of this. कि मैं एक बार एक बहुत बड़े फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी में उसके चीफ डिजिटल ऑफिसर को एडवाइस दे रहा था और एक बार हम लोग कॉफ़ी पे बात कर रहे थे ड्यूरिंग दैट प्रोसेस. एंड ही सेड कि यू नो व्हाट आई रियली लाइक द वे, वो नया था बेसिकली वहाँ पर, कि हाउ यू हैव बिकम द एडवोकेट फॉर द बिजनेस. और ये जो मैं डेटा साइंस और ये सब डेटा मॉडल इस टाइप की बातें कर रहा हूँ, ये उनके एडवोकेट बन के तुम प्रेजेंट कर पा रहे हो बेसिकली टू देम. And same with the tech teams as well, कि you are able to make the tech teams understand also the value of data basically. So that was one of the biggest benefits कि वहाँ पे मुझे लगा कि ये करने से ये फ़ायदा हो रहा है कि पूरे organization में I can stand out now as that person to become that trusted advocate across the organization, not just one stakeholder but multiple stakeholders, because of the ability to become sort of a bridge. Basically. All right. Reminds me slightly ulta hai example. I was working with one of the customers who wanted to sell their business and wanted to consolidate their different companies onto a single platform. And जब वो program की planning start हुई तो everyone was like, oh ये भी करेंगे, उसको उसके साथ integrate कर देंगे, 5 साल का program बना देते हैं. And my take was, अरे why are we even doing this? Let's look at the overall value. We just want something with which we can consolidate the numerous cost bases across the world and sari financial information on a single platform, so that valuation of the company and its potential profitability. These things will become much easier. It's much easier to sell a business which is operationally workable. Because वो तो बस अपना धंधा बेचना चाहते थे ना. धंधा बेचना चाह रहे थे. उनको they were not thinking as a going concern कि भाई 5 साल बाद आज HR system के साथ integrate करने का आपको फायदा मिलेगा. That is not what the value was. And then yes, we kind of compressed the program further, and everyone was happy, especially the finance folk, because they were like, हाँ इतना महंगा क्यों करना था. So this is another example जहाँ पे you became advocate for the customer based on the core value they are trying to achieve with an initiative. So हमारे यहाँ वहाँ पे क्या हुआ था कि भाई जो डेटा का प्रोग्राम था कि डेटा तो कोई आ गए किसी ग्रुप लेवल से पर्सन, और यहाँ मल्टीपल बिजनेसेस हैं. इंश्योरेंस का अपना बिजनेस है, पेंशन का अपना बिजनेस है, सबका अपना अपना धंधा है. वो उल्टा ये चाहता था कि सबको कंसोलिडेट करेंगे तो वैल्यू मिलेगा, बट बाकी वो लोग तो समझ नहीं पा रहे थे. तो मैंने बस यही कर दिया था कि लेट्स फ्लिप दिस एंड लेट्स गो यूज केस कि उन्हें क्या चाहिए एक्चुअली, और फिर जो भी डेटा प्लेटफॉर्म जो भी आप बनाना चाहते हो उसका वैल्यू उन्हें दिखाओ, और फिर उनसे यूज केस ढूंढ के लाए. बेसिकली उस कंपनी में मतलब 17 अलग कम्युनिकेशन के टूल थे बाय द वे. तो I guess you solved that riddle, isn't it? Bridge कहाँ से बनाना है.
यहाँ से वहां बनाना है। कोई किसी को बोलोगे कि 17 प्लेटफॉर्म हटा के एक बनाओगे, लॉजिकल बात है, लेकिन जो जो उनके उनके धंधे चल रहे हैं, क्यों वो डिसरप्ट करें बेसिकली। तो हमने कहा कि कोई बात नहीं, तुम अपने अपने कम्युनिकेशन टूल रखो, बट ना डेटा पास कर दो डेटा प्लेटफॉर्म में भी, जो हम कर देंगे, और बाद में धीरे धीरे कंसोलिडेट करते रहेंगे। मतलब कोई जल्दी नहीं कि अभी सब एक साथ कर दो कंसोलिडेट, धीरे धीरे कंसोलिडेट करना, और ये डेटा अप्लाई करके अपने कम्युनिकेशन को तुम टेलर कर सकते हो, वापस तुम्हें बेनिफिट मिलेगी। क्योंकि वहाँ क्या हो रहा था कि पेंशन का लेटर जो बेचता था उसे पता ही नहीं था कि भाई इंश्योरेंस का भी लेटर उसी कस्टमर को गया है, तो तुम्हें पता तो रहेगा कि क्या हुआ था उस कस्टमर के साथ। तो इस टाइप से वैल्यू जनरेशन की कॉन्वर्सेशन की थी। सॉरी टू डाइग्रेस अ लिटिल बिट, बट जस्ट आई थॉट एक्सप्लेन द एग्जांपल अ बिट मोर। तो एक क्वेश्चन था मेरे दिमाग में कि हम जैसे प्रोमिनेंट लीडर्स की बात करते हैं, ठीक है, इवन दे गेट मिसअंडरस्टूड। आई मीन गॉड नोज, इलॉन मस्क को अभी भी लोग ट्रोल करने से बाज नहीं आते, राइट? सो as somebody who's not a celebrity like the business leaders of the world, how do you kind of challenge the status quo? क्या वो आसान चीज है? नहीं, आसान चीज़ बिल्कुल नहीं है। लाइक आई सेड राइट इन द पास्ट एज वेल, हमने ये बात करी थी दैट ग्लोबल लेवल पे तो वो जो कर रहे हैं, यू कैन ऑलवेज जस्ट जैसे वी सेड राइट, द बिगेस्ट बेनिफिट इज ऑफ बीइंग द अंडरस्टूड वन, इज वन ऑफ द बेनिफिट्स इज एक्चुअली यू स्टैंड आउट ऑफ द क्राउड, एंड देयर आर मेनी वेज टू स्टैंड आउट ऑफ द क्राउड। कुछ लोग सोचते हैं कि भाई मैं ऐसा कॉन्ट्रेरियन व्यू दे दूँ तो मैं स्टैंड आउट कर जाऊँगा इलॉन मस्क स्टाइल का। वो शायद एक दो बार चल सकता in for ordinary people like us once or twice, and if your contrarian view is backed by proper evidence and whatever you have thought about, then it's actually fine. But actually I feel that बहुत ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं। मैं रेगुलरली हायर करता रहता हूँ, बहुत कम ऐसे लोग मुझे मिलते हैं एटलीस्ट इन द who have this mindset of being that advocate for the business as well as for the technology people to become the bridge। बहुत कम मिलते हैं। In fact, even in the tech streams, जैसे तो ERP से है राइट, मैंने कितने सारे डिजिटल प्रोजेक्ट किए, कोई भी डिजिटल का आदमी समझना ही नहीं चाहता है कि फाउंडेशनल जो कैपेबिलिटीज हैं ऑर्गेनाइजेशन की वो कैसे चलते हैं। वो अपने वेबसाइट को लाल पीला नीला करने में लगे रहते हैं कई बार, रादर देन अंडरस्टैंडिंग कि अच्छा मैंने ये डाल तो दिया ये सम फीचर ऑन माई ऐप और समथिंग विच इज़ वेरी वेरी कूल बाय द वे, वी हैव डन इट इन एन एजाइल वे, कैसे काम करेगा, ये पीछे कैसे चलेगा, नीचे के टीम्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। एंड गोइंग बाय अनदर एग्जांपल, एक बार ऐप पे कुछ तो उन्होंने सोचा कि हम ये चैटबॉट डाल देंगे, अच्छा रहेगा अच्छा रहेगा सोच के, बट तुम लाइव चैट डालेंगे सॉरी, बट पीछे जो एजेंट है वो फ़ोन की कॉल नहीं सुन पा रहे हैं, उनके पास किसी ने उन पे इम्पैक्ट ही नहीं कस्टमर सर्विसेज टीम के ऊपर कि उन पे क्या इम्पैक्ट होगा। फीचर तो डाल दोगे बट पीछे क्या होगा। ऑफ कोर्स फीचर वाज इम्पोर्टेंट एंड यूजफुल, तो आई वुड ऑलवेज रिकमेंड टू अंडरस्टैंड द बिजनेस कि उन पे क्या इम्पैक्ट होगा, एंड देन यू विल स्टैंड आउट ऑफ द क्राउड, दैट्स द बिगेस्ट वैल्यू। एंड अगर कॉन्ट्री व्यू लेना है तो डू इट एम्पैथेटिकली, सीधे चढ़ मत चलो, उनकी भाषा में उनकी वैल्यूज के अराउंड उनको समझाओ, and you will be understood. So tech mindset view, what's the tech mindset view on the value of becoming the understood one? I mean, the biggest value is take inspiration from the Galileo type people, basically. That's one of the biggest value, like Satya Nadella, like changing the perceptions. That's one of the biggest value, that change the perception from misunderstood to understood. ये तो अपने सबको पसंद है to be understood, right? Basically, so that is one big value. Second big value, like we spoke about with all of these examples, is you can become, or we can become the bridge, and which is a very unique skill. नहीं है लोग इतने सारे, like I said. And the last one जो कितनी बार हमने repeat कर दिया, you will stand out from the crowd, because बहुत सारे लोग अब fixated होंगे to become the best, let's say automation tester, or to become the best, जावा करते रहते हैं हम लोग, तो जावा ही यूज़ कर लेते, जावा डेवलपर, हमने जावा लिखा था ना, तो इसलिए, या अरे स्काला कर लेंगे, गोलैंग लगा देंगे, कई सारे लोग उसमें लगे रहेंगे, बट
फाइनल प्रॉब्लम जो बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, दे विल ऑलवेज स्टैंड आउट ऑफ द क्राउड. And this will personally benefit them, isn't it? Not just 100%. their organizations. All right. On that note, let's conclude today's episode. Thank you very much for joining in.